So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with KD. So today we will talk about the book Treasure Chest. Not about the book we will talk, but about the poem in the book Treasure Chest. So let's start. The name of the poem is The Night Mail, which is written by W.H. Auden, Winston U. Auden. Her full form is Winston U. Auden. Now let's start our chapter. Before starting the chapter, let's talk something about the poet. Her name is Winston U. Gordon. He took birth on 21 February 1907 and he died on 29 September 1973. Right? Okay, he is a British American poet. He is born in England and he was teaching his preparatory school. First he studied there and come to the British to teach there, and in 1976 he became the American citizen and teached there in American University. In winter he goes in New York and in summer he came to the Christian Lower Austria. He has written many poems on love. He written funeral blues and political and social theme. He wrote The Shield of Achilles, and he wrote the poem The Night Mail, which we are going to study in 1935, which was published in 1936, and after that after some year also it is republished. And here the poem what we are going to learn, going to study The Night Mail. Here the train is non-living and but it is behaved like a human being. Now it is a train which is crossing the border. Which border? This is England to Scotland. Right? Now train is crossing this border coming from here. It shows many gradients, means problem. It faces many problems. So let's start our chapter. This is a night mail crossing the border. Which border we know? Which border? England and Scotland. Okay. Crossing the border, bringing the checks and the postal order. Checks means letter and postal orders means money order. Letter for rich, letter for poor means train is showing no discrimination. Postal department is showing no discrimination, that what they are doing. Letter for rich, letter for poor means the postal department is showing no discrimination. The shop at the corner and the girl next door. These are the people who they are waiting for their letter or maybe the money order, postal order. Pulling up Bistock a study climb. Bistock एक प्लेस है स्कॉटलैंड में. A study climb मतलब होता है hilly areas, right? Hilly areas. Okay. Study climb means hilly areas. The gradient against her, but she is always on time. Gradient means होता है problems. Gradient means problems. Problems are coming in her way, but she is always on time. She is coming in every station on time. Gradient मतलब होता है problems which the train is facing, and the postal department too they are facing. Past cotton grass, past cotton grass are moorland builders. It means that the train is passing from land and hilly areas. Right? Now, slowing white stream over its shoulder. Slowing मतलब होता है checking. Train is moving. When train is moving, then the coal and the whatever it is as a धुआं. राइट तो धुआं की तरह वो जो उसके शोल्डर मतलब उसके ऊपर से ऐसे रहता है और यहाँ से धुआं ऐसे निकलता है. राइट तो वो धुआं बोला है. स्लोविंग वाइट स्ट्रीम ओवर आर शोल्डर, उसके ट्रेन के ऊपर से वो धुआं निकल रहा है. फिर स्नॉटिंग नॉइजली एज सी पासेस, जब वो चलती है तो बहुत ही स्नॉटिंग मतलब मेकिंग नॉइज़, बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, छुक 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 बोलती है. होप सो नॉट होपिंग यू have heard that sound.
साइलेंट वेल्स ऑफ विंड ब्रेंड ग्रासेस, जब वो अपने तेज़ रफ्तार से पहुंचती है तो वहाँ के जो ग्रासेस होते हैं, घास फूस, वो सब बेंड हो जाते हैं, राइट, वो सब क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। अब बर्ड टर्न दे हेड एट सी अप्रोचेस, जब, अब देखो यहाँ हिली एरियाज था, क्या था, हिली एरियाज। अब हिली एरिया से वो लोग कहाँ आ रहे हैं, फार्म एरिया पे, कहाँ आ रहे हैं, नाउ द ट्रेन इज़ कमिंग इन फार्म एरिया। नाउ टर्न बर्ड टर्न देयर हेड एज सी अप्रोचेस, जब ट्रेन आती है तो जो ये अप्रोचेस मतलब जब ट्रेन आती है, जब पहुंचती है तो जो बर्ड्स होते हैं वो अपने सर को उठाते हैं। स्टेयर फ्रॉम द बुशेज एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस, स्टेयर फ्रॉम द बुशेज मतलब उनके नेक्स्ट घर, उनका नेक्स्ट होता है ना घर, तो उनके घर से, अपने घर से वो लोग अपने सर को बाहर निकालती है जब वो आती है। एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस, ब्लैंक्ड मतलब खाली, फेस्ड कोचेस मतलब कि जो ब्लॉक्स रहते हैं ट्रेन में, राइट, ब्लॉक्स रहते हैं ना ट्रेन में, उसको बताइए कोचेस, ब्लैंक कोचेस। क्यों ब्लैंक कोचेस? बिकॉज द ट्रेन नाइट मेल इज कैरिंग ओनली चेक्स, लेटर्स एंड पोस्टल ऑर्डर्स, right, the night mail is carrying not taking any passenger in the train, because this is a train for only night mail, so there is no passenger. That's why the blank faced coaches of train, they are seeing, they turn their head as she approaches, stare from the bushes at her blank faced coaches. Sheep dogs do not turn their course, अब ये फार्म एरिया पे आए जो कि अभी हम लोग बात कर रहे थे। जब वो फार्म एरिया पे ट्रेन पहुंचा तब जो क्या होता है, फार्म अपने अपने खेत की रक्षा के लिए उस समय क्या था, डॉग और शिप्स को फार्मर्स बैठाए थे। तो अपने जो शिप और डॉग्स थे वो अपना हेड नहीं उठाते हैं, जब वो नाइट का समय सब लोग सोते हैं, तो जो शिप होते हैं और डॉग्स होते हैं वो अपने हेड्स को नहीं उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है ये रोज़ का है, नाइट मेल हमेशा आता है, लेटर देता है, चले जाता है, तो वो जानते हैं कि ये क्या है, तो इसलिए वो अपने सर को उठाते नहीं हैं। दिस स्लम्बर ऑन विथ पाव अक्रॉस, वो अपने पैर को, डॉग कैसे सोते हैं आपको पता होगा, अपने लेग को क्रॉस करके कंफर्टेबली सोते हैं, लाइक दैट, दिस यू कैन सी हियर, they bend their leg and then sleeping, they feel comfortable. So like that same in the farm area, the dogs and sheep, they are sleeping like this. Now they slumber on with paw across. In the farm she passes no one way, जब फार्म एरिया से वो पास करती है तो कोई नहीं उठता है, कोई भी नहीं उठता है। सबको पता है क्या है वो तो नाइट मेल है। बट अ जग इन अ बेडरूम जेंटली सिक, फार्म एरिया पे वो कच्चा हाउस रहता था, तो उनका जो बिल्डिंग होता था, यहाँ पे बिल्डिंग शेक करता था, लेकिन यहाँ पे केवल मेंशन किया गया जो बेडरूम में जो जग है व्हाटएवर जग है, वो जेंटली शेक करने लगता, लेकिन कोई उठता नहीं है। डाउन फ्रेशनेस क्लाइंब इज डन, इट मीन्स दैट द डाउन फ्रेशनर, अब वो नीचे आती है फ्रॉम द क्लाइंबिंग एरिया, फ्रॉम द हिली एरियाज इज केम टू द फार्म एरिया, नाउ इट इज़ कमिंग डाउन टूवर्ड्स मतलब किसके ओर, ग्लासगो सी डिसेंट, ग्लासगो एक प्लेस है स्कॉटलैंड में, प्लेस इन स्कॉटलैंड, तो वहाँ पे वो अब अराइव करने वाली है। अब डिसेंट क्या है, सिटी है, सिटी दैट इज़ इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पे इंडस्ट्रीज रहती हैं। टुवर्ड द स्टीम ट्यूब यील्डिंग डाउन द ग्लेड ऑफ केन्स, केन्स क्या है, एक बर्ड है, केन्स बर्ड है, राइट। नाउ अब वो केन्स को देखी, बर्ड्स को देखी, टूवर्ड द फील्ड ऑफ अपैरेटस एंड द फर्न्स। अब अपैरेटस किसको कंपेयर, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड इज अपैरेटस किसको कंपेयर किया गया, सिटी को। और फर्नेस, अपैरेटस आप देखे होंगे फिजिक्स लैब में, राइट, यू हैव सीन इन फिजिक्स लैब। फर्नेस मतलब होता है बर्नर्स, जो
Industrial areas, please learn this. Apparatus is being compared to city and furnace means burner. बर्नर कंपेयर किया गया है। मान के चलिए एक इंडस्ट्री है तो धुआं तो निकलेगा ऑफ कोर्स, या फिर उसके शोल्डर के ऊपर धुआं निकलता है, या फिर इसके बगल से, उसके बगल में लैंड के जस्ट नीचे से ऐसे धुआं निकलता है। उसको कंपेयर, उस धुआं जो निकल रहा है उस पाइप से, उसको कंपेयर किया है विद अ फर्नेस, राइट। इससे कंपेयर किया गया है apparatus, or we can say apparatus is being compared to city and furnace is being compared to the fog coming from industry. अब इजी हो गया। अब आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कैसे एग्जाम में लिखेंगे ऐसे इंडस्ट्री, उसके अंदर से जो पाइप निकल के हवा आता है वो फर्नेस से कंपेयर किया, ऐसे तो नहीं लिखोगे, 0 अंडा पाओगे अंडा, इसीलिए फॉग कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्री। नाउ सेट ऑन अ डार्क प्लेन लाइक गिंगैटिक चेसमैन, और जो इंडस्ट्री है डार्क प्लेन क्या है? डार्क प्लेन होता है डीप नैरो वैली। डीप मतलब गहरा होता है और नैरो वैली, ठीक। डीप नैरो वैली क्या हो गया? डार्क प्लेन। एक एक मीनिंग समझा रहे हैं, ओके। एंड लाइक अ गिंगैटिक चेसमैन, चेस खेलते हो कभी आप? कभी तो खेले होगे, देखे ही होगे गिंगैटिक चेसमैन। तो उसका जो वो होता है राजा सिपाही, तो उसका जो ये टॉप वाला पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट वो बड़ा होता है ना, उसको कंपेयर किया गया गिंगैटिक चेसमैन, उसको कंपेयर किया है डीप नैरो वैली से। और पूछ सकता है व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन सेट ऑन द डार्क प्लेन लाइक अ गिंगैटिक चेसमैन, तो लिख देंगे लाइक दिख रहा है, तो लिख देंगे सिमिलर इज़ द figure of speech in the, because it is saying that a dark plain means deep narrow valley is similar to the गिंगैटिक चेसमैन। All Scotland wait for her, जितने भी स्कॉटलैंड में पीपल हैं they are waiting for their letter and the postal order, चीज़ जो भी बोलो as your wish। होप सो यहाँ तक गजब समझाए होंगे कि मज़ा आ गया होगा पढ़ के। होप सो मज़ा आ रहा है, अगर यस तो कमेंट में यस ज़रूर लिखना, राइट। अगर नहीं मज़ा आ रहा है तो दोबारा देखो फिर यस लिखना, ओके। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, so you see 1 or 2 times this video, because in this video I am explaining one word, and between these lines if you have any confusion you can ask me in comment. I will try to give you answer, and I will feel very good when you will ask me. So the night mail is going to very interesting chapter, right? So let's start the next para. Now 2 lines are more there. In a dark glen beside the pale green sea close, pale green sea close क्या होता है? pale green sea close मतलब long path in Scotland sea side, long path मतलब लंबा रास्ता होगा सी साइड में, सी के साइड में ऐसे लॉन्ग पाथ, उसको बताया गया है पेल ग्रीन सी क्लोचेस। मैन लॉन्ग फॉर देयर न्यूज़, ऑल स्कॉटलैंड वेट फॉर हर, ये दोनों का मतलब द पीपल इन द स्कॉटलैंड दे आर वेटिंग फॉर देयर लेटर और द पोस्टल ऑर्डर्स। नाउ नेक्स्ट पैरा इज ओनली सेइंग व्हाट काइंड ऑफ लेटर केम टू द पीपल, व्हाट काइंड ऑफ पीपल रिसीव द लेटर फॉर थैंक्स, लेटर फॉर बैंक्स, लेटर फॉर थैंक्स, लेटर ऑफ थैंक धन्यवाद कहने के लिए, फ्रॉम बैंक से आया, लेटर ऑफ जॉय मतलब जानते हो हैप्पीनेस, फ्रॉम गर्ल और अ बॉय कोई भी लड़का या लड़की जॉय के लिए हैप्पीनेस के लिए लेटर भेजा, रिसिप्टेड बिल एंड इन्विटेशन, मान के चलो यहाँ तुम स्कॉटलैंड में तुम हो, यहाँ तुम्हारी फैमिली है, यहाँ पे तुम हो, तो पैसा केवल कमाने के जरिए तुम हो, तो फिर तुम पैसा कमा के भेज रहा हो, घर का जो बिल है मीटर से, अब तो हर घर मीटर से चलने लगा, मीटर बिल भरो, इनविटेशन किसी का बर्थडे है, किसी की मैरिज है तो इनविटेशन भेजना है कि आपको आना ज़रूर है, वो है टू इंस्पेक्ट न्यू स्टॉक और विजिट रिलेशंस, यहाँ पे आपका दुकान है, यहाँ पे आप हो, ये आपका क्या है शॉप है, अब आपके अंकल लेटर भेजें कि ये सामान स्कॉटलैंड में आई थिंक यह सस्ता मिल रहा है, तुम इसको वापस भेज दो,
ऐसा है। अब मैं नहीं कह रहा कि इंग्लैंड में सामान महंगा आता है, स्कॉटलैंड में सस्ता, नो, अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट इट इज सेइंग, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, राइट, टू इंस्पेक्ट न्यू स्टॉक ऑफ रिलेशन विजिट और रिलीजन विजिट में। फिर एंड एप्लीकेशन फॉर सिचुएशन, कोई सिचुएशन मान के चलो इंग्लैंड में वो हुआ, एयरप्लेन क्रैश हो गया, तो ये इंग्लैंड के पीपल तुम्हारी फैमिली है, तुमको बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा सिचुएशन आया था। एंड टिमिट लवर डिक्लेरेशन, मान के चलो यहाँ पे उसकी वाइफ है, यहाँ पे तुम हो, हस्बैंड हो उसके, तो वो अपना लेटर, अपने लव का लेटर तुमको भेज रही है, आपको भेज रही है, what she is feeling, how her day is going, whatever, ठीक, love declaration। and gossip from all the nation, हंसी मजाक हर एक नेशन में होता है through the letter only। new circumstantial, new financial, means new circumstantial and new financial, okay, न्यू सर्कमस्टेंशियल मतलब हो गया, न्यू फाइनेंशियल मतलब कि नया नया थिंग्स व्हाट दे आर सीइंग इन देयर सिटी दे आर शेयरिंग विद यू। लेटर विथ हॉलीडे स्नैप्स इन लार्ज इन, मतलब कि आपके भाई बहन इंग्लैंड में, आप स्कॉटलैंड में, तो वो किसी हॉलीडे पे कहीं गए, तो उन्होंने आपको बताया कि उन्होंने वहाँ पे क्या न्यू देखा, what they saw new there, they are declaring that same thing in the letter to you so that you also know what they have seen। letter with faces include in the margin, जो people illiterate है, जो पढ़े लिखे नहीं है, तो वो अपने मार्जिन से कोई भी ऐसा पिक्चर बना देंगे जैसे कि तुम समझ जाओ कि वो कहना क्या चाहते हैं, तो मार्जिन इलिटरेट पीपल के लिए यूज़ हुआ है। लेटर फ्रॉम अंकल, कज़िन और आंट, लेटर आया आंटी, चाची या फिर कज़िन, भाई बहन। लेटर टू स्कॉटलैंड फ्रॉम फ्रांस, फ्रॉम साउथ ऑफ फ्रांस, साउथ ऑफ फ्रांस से लेटर कहाँ आ रहा है, स्कॉटलैंड में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, स्कॉटलैंड में, ठीक, ये बताया गया। फिर लेटर ऑफ कंडोलेंस ऑफ टू हाईलैंड एंड लोलैंड, कंडोलेंस मतलब होता है फीलिंग सॉरी फॉर दैट ऑफ रिलेटिव्स, किसी का डेथ हो गया रिलेटिव्स में, तो वो कंडोलेंस मीन्स सैड न्यूज़, राइट, सैड न्यूज़। और हाईलैंड एंड लोलैंड मतलब कि जो स्कॉटलैंड में एरियाज़ हैं वो हाईलैंड और लोलैंड के हैं, ठीक। अब बोला है नोट्स फ्रॉम ओवरसी टू हाई ब्रिजेस, नोट्स आर हाई ब्रिजेस मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड इन स्कॉटलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड है स्कॉटलैंड में, वहाँ से हाई ब्रिजेस की ओर आ रहा है। नोट्स मीन्स लेटर। राइटिंग ऑन पेपर ऑफ एवरी यूग मतलब एवरी कलर से वो लोग लेटर में, अपने पेपर में तुमको लेटर भेज रहे हैं, वो भी पिंक कलर का, वायलेट कलर का, वाइट कलर का, ब्लू, अच्छा मेरे पास तो होगा, पिंक नहीं है सॉरी, तो रेड यूज़ कर दे रहे हैं, वायलेट भी नहीं है, ब्लू यूज़ कर दे रहे हैं, वाइट कलर का, ब्लू फिर आ गया, ब्लू कलर का, इन सब कलर से वो लोग अपने लेटर्स लिख के तुमको भेज रहे हैं। द चैटी कैटी, द बोरिंग एब्डोरिंग, चैटी कैटी मतलब होता है सिंपली विदाउट एनी रीज़न दे आर राइटिंग लेटर बिकॉज दे वॉन्ट टू टॉक टू यू without any reason. For example, you are having no reason but you are calling your friend, what are you doing, I am feeling boring, what to do. After doing this simply talk, we have completed 1 hour, or we can say we have wasted our 1 hour of our life. 1 hour 1 second, my teacher always say 1 minute is equal to 1 whole year, what you are wasting. So time is precious, use it wisely. Whatever we are talking about the chapter, the boring मतलब लेटर एकदम बोरिंग था। एब्डोरिंग मतलब फ्रेंडली लेटर्स, फ्रेंड जो बोलते हैं जिस वर्ड्स में, वो फ्रेंडली लेटर्स। द कोल्ड एंड ऑफिशियल, कोल्ड मतलब होता है सीरियस बात, एकदम सीरियस, किसी का तबीयत एकदम सीरियस है या फिर बहुत ही सीरियस मैटर है, तुमसे बात करना चाह रहा है वो। ऑफिशियल मतलब फॉर्मल लेटर। एंड हार्ट आउटपोरिंग मतलब होता है वेरी फनी लेटर, वेरी फनी, मज़ा आ गया पढ़ के, वो वाला लेटर्स, ठीक।
क्लेवर मतलब चालाक, स्टूपिड मतलब स्टूपिटी वाला, शॉर्ट छोटा, लॉन्ग बड़ा लेटर, एंड द टाइप जो भी टाइप किया हुआ है कीबोर्ड पे टाइप किया हो या फिर प्रिंट करा के कोई लेटर आया उसमें स्पेलिंग जो थी रॉन्ग थी, ऐसे बताया, डिक्लेयर किया है इस पोएम में। क्या डिक्लेयर किया है? द टाइप एंड द प्रिंटेड एंड द स्पेल्ड और लॉन्ग ऑल रॉन्ग था। नाउ द लास्ट पैरा आते हैं, व्हाट इट इज़ नाउ। अब इसमें आपने क्या देखा? अगेन पोस्टल डिपार्टमेंट इज showing no discrimination. The postal members show no discrimination whether the letter is clever, stupid, short or long. Again, how good postal departments are, right? Now thousand are still sleep. अब जो दूसरा एरिया आ गया। हम पहले एरिया में क्या देखे थे हम कि ये हिली एरियाज़ हैं। ये क्या थे? हिली एरियाज़। फिर नीचे आए फार्म एरियाज़, फिर नीचे आए सिटी में इंडस्ट्रियल एरियाज़। फिर क्या हुआ? फिर हमने देखा कि यहाँ पे लेटर के बारे में बात हुआ कि कैसा लेटर पहुँचा। थैंक वट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी। तो ऐसा लेटर आया। अब आते हैं कि एक नया प्लेस है स्कॉटलैंड में जहाँ पे हज़ारों लोग सोए हुए हैं। अब ये नहीं कि एक प्लेस में हज़ार लोग सोए, मतलब अपने अपने घर में जिसको लेटर रिसीव करना है वो लोग सोए हैं। ड्रीमिंग ऑफ ट्रीफाइंग मॉन्स्टर अपने सपने देख रहे हैं। और ऑफ फ्रेंडली टी बिसाइड द बैंड ऑफ कैट्रॉन और क्रॉफोर्ड्स। और कुछ लोग हैं कैट्रॉन और क्रॉफोर्ड, ये प्लेस है स्कॉटलैंड में, ठीक है, प्लेस है स्कॉटलैंड में, वो अपने चाय इंजॉय कर रहे हैं, टी इंजॉय कर रहे हैं। फिर बोला है अस्लीप इन वर्किंग ग्लासगो भी प्लेस है स्कॉटलैंड में। अस्लीप इन वेल सेट एडमबर्ग भी प्लेस है स्कॉटलैंड में। कोई काम कर रहा है स्कॉटलैंड में, कोई वेल सेट है स्कॉटलैंड में, ये बताया। अस्लीप इन ग्रेनाइट एबर्डन, they are sleeping means the 1000 what they are sleeping, they continue their sleep, they continue their dream सपने को कंटिन्यू किए हैं। एंड शैल वेक अप सोंग एंड लॉन्ग फॉर न्यूज़, और जल्दी वो उठ जाएंगे और अपने लेटर को रिसीव करने के लिए एक्साइटेड रहेंगे। एंड नन विल हियर द पोस्टमैन नॉक्स, इट मीन्स व्हेन द पोस्टमैन विल नॉक, देन इफ द पोस्टमैन सेज दैट आई फॉरगेट योर लेटर, व्हाट दे विल फील? देयर हार्ट विल क्राई that they are waiting for very long, and when the postal department says that they forget their letter, what you will feel? That same they will feel. एक सैड वाला चेहरा हम नहीं बना पा रहे हैं, रो रहा है, उसका दिल रो रहा है, उसका दिल ऐसे रो रहा है। क्यों? क्योंकि लेटर भूल गए। विदाउट द क्यूरिंग ऑफ हार्ट के तुतरे हो जाएंगे, राइट? फॉर हु कैन बियर टू फील हिमसेल्फ फॉरगेट, कौन अपने आप को भूला हुआ महसूस कर सकता है? आपको लास्ट पैरा में सैड वाली फीलिंग आई, वेरी सैड। फिर इस वाले पैरा में, ये वाले पैरा में बड़ा मज़ा आया लेटर के बारे में पढ़ के, कैसा कैसा लेटर आया। इस वाले पैरा में तो हम खाली देखें कि कैसे सिटीज़ को कंपेयर किया गया है इंडस्ट्रियल एरियाज़ को। प्लीज़ डोंट फॉरगेट दीज ऑल थिंग्स। फिगर ऑफ स्पीच तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड डू यू नो व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम? Theme of the poem, this question is very important. It may ask, 99% it will ask. The theme of poem is to encourage the postal department. Postal department कितना वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, but they are always ready. How much problem they are facing in their way, but they are always reaching the station on time. Right? For you, I have to take one photo. Can I? So that it will very clear for you. This is a picture for only first para. ये है border, ठीक है?
बॉर्डर है, यहाँ इंग्लैंड है, यहाँ पे स्कॉटलैंड है। अब ये लेटर और ये ट्रेन है, क्या है नेम, क्या है ट्रेन का? नाइट मेल है। क्या ले आ रहा है? लेटर एंड मनी ऑर्डर, चेक एंड पोस्टल ऑर्डर। ये कितना भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ये क्या है? प्रॉब्लम्स है व्हाट ट्रेन इज फेसिंग, postal department is facing. But also they are reaching at station on time, and these are the people shop at the corner and the girl next door, these are the people waiting for their letter. Hope so everything is being very very clear. So if you like this video, if you think that this video is very very useful for you, don't forget to like, share and subscribe. Thank you.